सज्जन कुमार होर भी 3 ऑलरेडी केसेस च उम्र कैद की सज़ा उन्होंने मिली हुई है, पर जेल च ही रहणगे सज्जन कुमार, एक वड्डे कांग्रेसी आगू, वड्डे कांग्रेस का चेहरा, क्योंकि होर 3 केसेस उन्होंने उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के वालों सुनाई गई है। इनफैक्ट जेल च मौजूद ने ते इस पर्टिकुलर केस का असीं जिक्र कर रहे हैं 84 सिख दंगिया के मामले सज्जन कुमार बरी होए ने। जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले सज्जन कुमार बरी हो गए ने। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला पूरा सुनाया है। हिंसा च दरअसल 3 लोगों की मौत हुई सी। यह पूरा मामला अपने दर्शकों को एक बार असीं दस सने हैं ते साडे नाल HS फूलका जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगिया मामले च बरी हो गए ने, तुहाडा पहला रिएक्शन सर की सबूतां दी घाट दे करके? देखो उम्र 3 उम्र कैदां दी सज़ा इनू पहला ऑलरेडी हैगी आ जी ते ओ मर्डर केसां दे विच ते ओहदे विच 3 उम्र कैदां दी सज़ा विच ओ जेल विच आ। 7 साल हो गए उसनू जेल विच आ, 8 साल हो गए उन तकरीबन। ते ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਟੈਂਪਟਿਵ ਮਰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं फूलका जी लगातार दस रहे हैं कि 3 होर केसेस भी उन्होंने उम्र कैद की सजा मिली हुई है। सजा उम्र कैद की सजा मिली है, 8 साल तो जेल आ, जेल ही आ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟਿਵ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। अच्छा, जो गवाही नहीं दी गई, जो मेन गवाह सी हरविंदर सिंह, ता करके केस थोड़ा नहीं ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਆ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। जी जी, मैं आही गल पूछ रही ता करके वीक पिया केस। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। फूलका जी ऑर्डर की कॉपी कद तक आ जाएगी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। हेलो, मेरे को पूछ रहे हो? जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, ऐसी कोई गल नहीं। उन्होंने प्रॉपर पैरवाई की, उन्होंने गवाह की डेथ होगी तो BHMC की कर सकती है। अच्छा, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? नहीं, अज गल किहड़ी गल आ, ਉਹ जेल ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ जेल ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਅਪੀਲ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ, पर असली ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੇਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 100% ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपको सजा मिल गई है, सजा दी गई है, आपको सजा माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया? इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप सज्जन कुमार को दोषी मानती है? क्या उस समय हुआ था? दोषी है, दोषी है, दोषी हुआ क्या? सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़े होकर आदमियों को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तो गवाह है। क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना, हमारे तो गवाह है। अभी तो गवाह हो रहेंगे।
सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा, बचने वाला नहीं है वो। आप हाई कोर्ट में अपील जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अपने इसके लिए खड़े हैं, हम अपने 84 के लिए खड़े हैं। हम 1 तारीख नहीं मिस करते, हर 1 तारीखों पे आते ही। हमें कौन नहीं जानता, सारे अंदर जानते हैं हमें कि 1 तारीखों में आती है ये। क्या नाम है माता जी आपका? लक्ष्मी कौर। माता जी, आज कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करते हुए ये कहा है कि उनका कोई दोष नहीं था 84 में जिस प्रकार से करते हुए। उसका कैसे नहीं दोष था? पेट्रोल पंप इसने फ्री कर दिए गए। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी। टायर पुराने में नए क्या सबको दे दी। गाड़ी भर भर के जा रहे, जिंदे के गलों में टायर डाल रहे थे और जल रहे थे। जो इनके वर्कर थे वो बोल रहे थे ये सरदार डांस कर रहा है, सरदार डांस करे। अगर तुम्हारे बेटे के गले में ऐसा ही हार होता तो हमारे सिख भाई भी कहते कि डांस कर। हमारे सिख दयालु हैं, हमारे सिखों की बराबरी नहीं कर सकता। इससे पूछा जाए जब कत्लेआम हो रहा था कहाँ पे था, इसे पूछा जाए। इसके ने बहुत हमारे साथ बेइंसाफ किया। नांगलोई, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, इतना इसने बेशुमार इसने फूट गांव सारा इधर से आके टूट पड़ा सिखों पे। सज्जन कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का तो वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे नहीं सोच सकते? ये क्या था, उधर का एमएलए था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उत्साह दिलाया था। लोग जहां तहां से आ गए थे मारने के लिए। और जो 407 गाड़ी है टाटा वो भर के आए थे। किसके हाथ में डंडे थे, किसके हाथ में पेट्रोल था, किसके हाथ में टायर था और हो करते हुए घूम रहे थे सिखों के पास। अगर नजर आ गया एक सिख का कोई बच्चा जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इनको मारो। क्यों? ऐसा किसने क्या किया था? हमारे साथ में तो इन्होंने जुल्म ही किया ना। और आज तक हम उसी 84 को लेके आज तक हम गली गली में ये समझ लो कि भटक ही रहे। इंसाफ हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंसाफ के लिए तरसना, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो? ये इंसाफ है? बेइंसाफ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हम आगे जाएंगे। और इसको दो तो फिर आप फांसी दो। इसके अधिकार नहीं जीने का, बिल्कुल नहीं है। आज तक हमारा बच्चा था जब साल का, आज हमारा बच्चा 40 साल 45 साल का हो सकता है। वो कहता ऐसा क्या हुआ? अरे बच्चे आप नहीं जानते, हम जानते। 3 दिन और 3 रातें अन्न का दाना नहीं देखा। बच्चे लेके घर से निकले थे बाहर, घर को तबाह कर दिया। घर के एक ईंट नजर नहीं आई कि हम कहीं रह भी सकेंगे। सरकार देख सकते हो, कानूनी में इंक्वायरी कर सकते हो, उनके बच्चों से पूछ सकते हो। बिना पूछे भी आपने उसको बरी कर दिया। बहुत गलत किया है। हमारी जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। अभी यह झूठ में कांग्रेस राज था। इसने कब तक भी इसने अध्यक्ष से इसने इस्तीफा नहीं दिया, चलाता रहा, अपना काम करता रहा, विधेयक बना रहा। जब जाके बीजेपी सरकार आई, कुछ उसने भी सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इंक्वायरी करी, जब माताओं से पूछा, उनके बच्चों से पूछा। जब गुनाहगार था जेल में, बिना कोई गुनाहगार बैठ नहीं सकता। ये गुनाहगार है, कातिल है, खूनी है। हमारा सारे घर इसने उजाड़े हैं। हमारी बेटी बहनों को बेवाह बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो क्यों नहीं गए? दोषी है और आज भी है, कल भी है। इसको अब हम फांसी की मांग करेंगे और इसको फांसी दी जाए। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये बरी करने वाला आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ के लिए रो रहे, तरस रहे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जी।